Hello everyone, I welcome you all on Simplified. In the last video, we discussed about how trade takes place when there is absolute advantage to a country in the production of one commodity. And today, that was known as theory of absolute advantage. And today we are going to discuss about a theory which is known as comparative advantage theory. So what happened that in 1917, David Ricardo, published his Principles of Political Economy and Taxation, in which he presented the law of comparative advantage. And from that period, this theory started growing, and still today, this theory is unchallenged laws of economics with many practical implications and applications, and it is still followed. हमने हमने एब्सोल्यूट थ्योरी में पढ़ा था कि इफ़ वी कंपेयर दैट थ्योरी विद टुडेज सिनेरियो देन दैट वाज नॉट a very practical in nature, but this theory is still working and it has many practical applications. So let's begin with this theory. So this theory was given in 19th century, and this theory is known as law of comparative costs theory, and this theory was given by David Ricardo. और डेविड रिकार्डो ने क्या कहा था, हमने लास्ट थ्योरी में पढ़ा था कि एडम स्मिथ ने कहा था कि ट्रेड तभी पॉसिबल है जब किसी कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है. जैसे इंडिया है, स्पेशलाइज्ड है एक कमोडिटी में, वेयर एज यूके स्पेशलाइज्ड इन अदर कमोडिटी. सो जिसके पास जिस चीज़ की स्पेशलाइजेशन है हम उन चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द मेथड थ्रू विच ट्रेड इज़ पॉसिबल. बट डेविड रिकार्डो सेड दैट व्हाट इफ one country is specialized in the production of both of the commodities and another country lacks in both. So डेविड रिकार्डो ने ये concept दिया कि what if India जो है specialized है in the production of wheat and rice as well, whereas UK lacks in the specialization of wheat and rice. So trade कैसे possible हो सकता है इस situation में, ठीक है. तो रिकार्डो said that for example, this is a hypothetical example I have taken, ठीक है. तो I have considered two countries, India and UK, and commodities as wheat and rice, ठीक है. So what I have taken as that India is producing 6 kilograms of wheat per hour, whereas UK is producing 1 kilogram of wheat per hour. And in terms of rice, India is producing 4 kilograms of rice per hour, whereas UK is producing 2 kilograms of rice per hour. So यहाँ पे रिकार्डो ने कहा है कि अगर UK जो है, we can see that UK is in both of the commodities it is less specialized, ठीक है, whereas India is more specialized. So यहाँ पे ट्रेड कैसे पॉसिबल है. So इसने बेसिकली इस थ्योरी में ये चीज़ डिस्कस करी है. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया जो है 6 times बेटर है इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट देन यूके, ठीक है. 6 times, यू सी द गैप, 6 times बेटर है, ठीक है. और इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट इंडिया कितना बेटर है, 2 times बेटर है इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, ठीक है, देन यूके. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, दोनों का डिफरेंस देखते हैं, वीट का और राइस का, और हमें पता लगता है कि वीट में कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा है इंडिया को, एंड इट अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज देखें, ऑल दो इंडिया इज़ स्पेशलाइज्ड इन बोथ ऑफ द कमोडिटीज़ देन यूके, बट अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज देखें तो वीट में इंडिया को ज़्यादा है एज कंपेयर टू राइस, ठीक है. तो राइस में कितना यूनिट्स ज़्यादा इंडिया प्रोड्यूस कर रही है देन यूके, 2 units, वेयर एज वीट के केस में इंडिया ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है 6 units, ठीक है. सो इस सिचुएशन में भी ट्रेड कैसे पॉसिबल है हम इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे, बट प्रायर टू दैट वी विल डिस्कस इट्स अजम्पशंस फर्स्ट, ठीक है. सो डेविड रिकार्डो की जो थ्योरी है दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, इसमें रिकार्डो कंसीडर करते हैं 2 into 2 into 1 मॉडल, दैट इज 2 goods that I have taken rice and wheat, 2 countries, India and UK, and one factor that is labor, ठीक है. So I have stated that labor is the only factor of production. Of course in the coming videos I'll discuss each and every point, ठीक है. हम इसको labor अब only factor of production है, ठीक है.
यहाँ पे एक पॉइंट है कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस का, सो हम उसको कमिंग थेरीज में भी डिस्कस करेंगे, इसको ग्राफ के साथ डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ हम इसको टेबल इसका सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। इन द कमिंग वीडियोस हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी डिस्कस करेंगे। सो थर्ड एजम्पशन दैट रिकार्डो हैज़ गिवन इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमारे पास लेबर है। So he says that labor is perfectly mobile in the country, within the country, but it is perfectly immobile internationally. ठीक है. He has also stated that technology level which is used in the production is fixed. ठीक है. And technology used is same in the country, but it may vary from country to country. ठीक है. But within the country it is considered as same. This theory works in under constant cost conditions. ठीक है. He also has stated that perfect competition prevails in all the markets, including factor and goods markets. ठीक है. In the coming videos, we will discuss these assumptions as well. But for now, you just see कि उसने assumption क्या क्या दी है. अब he was also in favor of free trade. मतलब he was following laissez-faire policy as Adam Smith has followed, है ना. He has also considered transport cost as zero. ठीक है. अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि बैलेंस ट्रेड विल टेक प्लेस, मतलब वैल्यू जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स. ठीक है. एंड देर इज ऑफ कोर्स नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. दैट इज वाई ही स्टेटेड दैट फ्री ट्रेड इज टेकिंग प्लेस. दैट इज laissez-faire पॉलिसी ही इज फॉलोइंग. ठीक है. नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट इफ आई एलैबोरेट दिस टेबल, देन रिकार्डो सेज दैट इंडिया जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 6 यूनिट्स. ठीक है. आई हैव टोल्ड यू. यूके प्रोड्यूस कर रहा है 1 यूनिट. 6 टाइम्स का डिफरेंस है. ठीक है. इंडिया राइस प्रोड्यूस कर रहा है 4 यूनिट्स एंड यूके प्रोड्यूस कर रहा है 2 यूनिट्स. 2 टाइम्स का डिफरेंस है. तो यहाँ पे ट्रेड कैसे स्टेबल हो सकता है. ठीक है. ट्रेड कैसे टेक प्लेस करेगा, हम वो चीज़ देखेंगे. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एब्सोल्यूट थ्योरी में, है ना, कि यूके के पास ज़्यादा कमोडिटी थी राइस की एंड इंडिया के पास ऑफ कोर्स वीट इतना ही था, 6 यूनिट्स का था. उसमें भी डिफरेंस 6 टाइम्स का था. ठीक है. बट यहाँ पे क्या करेंगे, वीट, अगर इंडिया वीट एक्सचेंज करता है यूके के साथ, मतलब उसको अपने 6 यूनिट्स देने पड़ेंगे, है ना. 6 यूनिट्स अगर वो देगा किसको, यूके को. ठीक है. और 4 यूनिट्स अगर वो देगा यूके को, तो ट्रेड तो पॉसिबल ही नहीं है किसी सेंस में, क्योंकि यूके के पास तो दोनों चीज़ों में वो स्पेशलाइज्ड नहीं है ना. कंपैरेटिव एडवांटेज किसके पास है, इंडिया के पास. सो रिकार्डो इसको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं कि हम चेक करेंगे कौन सी कमोडिटी में किस कंट्री को ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज है, और जिसमें लेस एडवांटेज है या लेस डिसएडवांटेज है उसमें वो कमोडिटी एक्सपोर्ट करेंगे या इम्पोर्ट करेंगे. अब हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे इस टेबल के थ्रू. सी, इंडिया वीट में 6 टाइम्स बेटर है. ठीक है. एडवांटेज कितनी है, 6 टाइम्स की, वेराइज राइस में एडवांटेज है 2 टाइम्स की. ठीक है. सो यूके जो है उसको लेस डिसएडवांटेज किस में है, वीट राइस में. ठीक है. राइस में इसको लेस डिसएडवांटेज है ना, क्योंकि 6 का डिफरेंस ज़्यादा है या 2 का डिफरेंस ज़्यादा है. ऑफकोर्स 6 का ज़्यादा है, तो डिसएडवांटेज लेस किस में हुई, 2 में, है ना. तो रिकार्डो सेज कि एज यूके हैज़ लेस डिसएडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, what can UK do, that UK can export, or UK can first get specialized in the production of rice, and then what UK can do, that UK can export rice to India, and India can export wheat to UK. So in this way balanced trade can take place. ठीक है. सो हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के कैसे ट्रेड होता है ये चीज़ देखेंगे. सो अब हमें ये तो पता लग गया कि यूके जो है वो उसको स्पेशलाइज करना पड़ेगा किसमें, इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, एंड इंडिया जो है वो वीट तो एक्सपोर्ट करेगा ही करेगा. ठीक है. सो व्हाट विल इंडिया डू, दैट इंडिया देगा अपना 6 यूनिट्स ऑफ वीट किसको, यूके को. सो 1 घंटे में इंडिया कितने यूनिट्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहा है, 6 यूनिट्स ऑफ वीट. ठीक है. वेराज यूके जो है प्रोड्यूस कर रहा है 1 यूनिट ऑफ वीट इन 1 आवर. सो अगर इंडिया
एक्सपोर्ट करेगा यूके को, तो यूके के पास कितना बेनिफिट होगा? 6 आवर्स का, 6 आवर्स ऑफ लेबर टाइम का, ठीक है। तो जो 6 आवर्स ऑफ लेबर टाइम का बेनिफिट होगा यूके को, वो उस 6 आवर्स को यूज़ कर सकता है इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, ठीक है। तो 6 आवर टाइम को अगर वो यूज़ करेगा तो उसके पास कितनी प्रोडक्शन होगी राइस की? 12 यूनिट्स की, ठीक है। सो अगर अब यहाँ पे हमने, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि हमने यहाँ पे क्या अज्यूम करा है कि एक बैलेंस्ड यूनिट्स पे ट्रेड पॉसिबल हो सकेगा, ठीक है। तो अगर इंडिया अपना देगा 6 यूनिट्स ऑफ राइस, तो वो ऑफकोर्स राइस भी 6 वीट इंडिया दे रहा है 6 यूनिट्स को, है ना। 6 यूनिट्स ऑफ वीट वो दे रहा है यूके को, सो वो 6 यूनिट्स ही राइस भी लेगा यूके से, है ना, क्योंकि 4 तो वो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है, उससे कम तो इंडिया लेगा नहीं, क्योंकि वो एक बेनिफिशियल ट्रेड नहीं होगा इंडिया के लिए। तो इंडिया क्या करेगा? 6 यूनिट्स ऑफ वीट एक्सचेंज करेगा फॉर 6 यूनिट्स ऑफ राइस। सो एक ये बैलेंस ट्रेड आएगा यहाँ पे। सो अब ऑब्लिगेशन क्या है यूके का कि उसको 6 यूनिट्स ऑफ वीट अगर उसने इंडिया से लिए हैं तो उसको इन रिटर्न क्या देना है? 6 यूनिट्स ऑफ राइस भी देने हैं। सो वॉट वी डिस्कस्ड दैट इफ यूके इज गेटिंग 6 यूनिट्स ऑफ राइस, 6 units of wheat from India, it means it is getting 6 hour of labor time from India. So what will UK do? That UK will utilize that 6 hours in the production of rice, and उसको प्रोड्यूस करके वो कितना प्रोड्यूस करेगा? 12 यूनिट्स। और अगर 12 यूनिट्स ऑफ राइस में से वो 6 यूनिट्स ऑफ राइस दे भी देगा इंडिया को, तो उसके पास सरप्लस कितना बचेगा? एक्स्ट्रा कितना बचेगा? 6 यूनिट्स ऑफ राइस। तो वो 6 यूनिट्स ऑफ राइस क्या हो गया? बेनिफिट हो गया यूके का। सो यहाँ पे हमने क्या देखा? लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था एब्सोल्यूट में भी कि बेनिफिट किसका हो रहा था यहाँ पे? यूके का। बट हमने यहाँ पे ये चीज़ कंसिडर नहीं करनी है कि बेनिफिट किसका हो रहा है, किस कंट्री का ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। हमने ये चीज़ यहाँ पे कंसिडर करनी है कि इस केस में भी जब इंडिया जो है वो स्पेशलाइज्ड है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ ऑफ द कमोडिटीज़, स्टिल ट्रेड इज टेकिंग प्लेस। सो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ कंसीडर करने वाली क्या है कि ट्रेड जो है वो इस टर्म्स में सेटल हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कितना ट्रेड को, कैसे हमने ट्रेड को सेटल करा और कितना बेनिफिट हुआ यूके को। हमने देखा कि 6 यूनिट्स ऑफ राइस जो है वो ट्रेड बेनिफिट हुआ किसको? यूके को। सो यहाँ पे क्या हुआ कि अब अगर हम डोमेस्टिकली देखें तो इंडिया के लिए बेनिफिशियल ट्रेड कब होगा? अगर वो 6 कमोडिटीज़ अपनी देगा, ठीक है, बट उसको इन रिटर्न क्या मिलेगा? 4 यूनिट्स ऑफ राइस से ज़्यादा मिलेगा, और उसको वही मिला इंडिया को। इट मीन्स इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल ट्रेड है। और यूके के लिए बेनिफिशियल ट्रेड कब होगा? कि अगर उसको 6 लेस देन 12 यूनिट्स ऑफ राइस देने पड़ रहे हैं फॉर 6 यूनिट्स ऑफ वीट, ठीक है। और यही चीज़ यूके ने भी करी। सो उसका ट्रेड यहाँ से भी सेटल हुआ। उसने अपने 12 यूनिट्स ऑफ राइस प्रोड्यूस करे और 12 यूनिट्स राइस से लेस देन उसको देना पड़ा इंडिया को। कितना दिया उसने? 6 यूनिट्स ऑफ राइस दिए, तो वो 12 यूनिट से कम दे रहा है ना। सो उसका भी बेनिफिट हो गया और इंडिया का भी बेनिफिट हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? दैट 4 units of rice is less than 6 units of wheat is again less than 12 units of rice, ठीक है। तो जो 12 का और 4 का डिफरेंस है इज 8C, ठीक है। 8 यूनिट्स ऑफ राइस जो है वो स्टिल हमारे पास क्या बच रहा है? इट इज़ टोटल गेन्स फ्रॉम ट्रेड, ठीक है, डिफरेंस है। अब हमने ये चीज़ देखी कि यूके को कितना बेनिफिट हुआ? 6 यूनिट्स का, है ना। उसको 12 उसने प्रोड्यूस करे और 6 देने के बाद उसको 6 यूनिट्स बच गए, तो उसको 6 यूनिट्स का बेनिफिट हुआ। वेराज अगर हम इंडिया के केस में देखें तो उसको 2 यूनिट्स का बेनिफिट नहीं हुआ, बिकॉज वो अपना प्रोड्यूस कितना कर रहा है? 4 यूनिट्स, और उसको यूके ने कितना दिया? 2 यूनिट्स, मतलब 2 यूनिट्स उसको एक्स्ट्रा है ना। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो कितना बनता है हमारा? 8 यूनिट्स ऑफ राइस का बेनिफिट हुआ, मतलब 8 यूनिट्स ऑफ राइस का क्या हुआ? टोटल गेन्स फ्रॉम ट्रेड, ठीक है। सो इस प्रोसीजर से हम ट्रेड को सेटल करते हैं व्हेन वन कंट्री इज स्पेशलाइज्ड इन बोथ ऑफ द कमोडिटीज। सो इस तरीके से ट्रेड सेटल होता है, ठीक है।
अब ये सेटलमेंट तो होगी ट्रेड की, हमें पता लग गया कि अगर इस केस में भी हम ट्रेड को कैसे सेटल कर सकते हैं, और ये आज के सिनेरियो में भी बहुत यूज़फुल है ये थेरी, ठीक है। सो अगर व्हाट इफ अ केस कम्स दैट नो कंपेरेटिव एडवांटेज इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, कौन सा ऐसा केस आ सकता है, ठीक है। अभी तो हमने देख लिया कि यूके जो है वो लेस कम डिसएडवांटेज पे था इन केस ऑफ राइस, ठीक है। बट व्हाट इफ अ केस कम्स दैट यूके स्टार्ट कर दे 3 यूनिट्स ऑफ वीट प्रोड्यूस करना पर आवर, है ना, तो हमारे पास रेशियो क्या आएगी, 6:3 एंड 4:2, है ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वो भी हाफ लेबर टाइम कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। सो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि उसको लेस डिसएडवांटेज किस केस में है ना। सी बहुत इजी है, हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ऊपर वाले में रेशियो क्या आ रही थी 6:1, है ना। तो हमने इसको इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया कि वो 6 टाइम्स बेटर है कौन, इंडिया। बट व्हाट इफ अगर 1 की जगह 3 पुट कर दिया जाए, अगर यूके स्टार्ट कर दे 3 किलोग्राम्स ऑफ वीट प्रोड्यूस करना, तो फिर 6:3 रेशो आ जाएगी, मतलब 2:1 यहाँ पे भी हो गई। और अगर हम नीचे वाला केस देखें 4:2 है, तो ये 2:1 है ना। मतलब जो यूके है वो हाफ लेबर टाइम कम प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो हाफ डिसएडवांटेज पे है। तो अगर ऊपर वाला भी यही केस हो जाता है, तो फिर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन किस कमोडिटी में यूके लेस डिसएडवांटेज पे है ना। तो अगर ये वाला केस आता है तो फिर दिस इज अ कंप्लीट क्लियर सिचुएशन ऑफ नो कंपेरेटिव एडवांटेज। इस केस में थेरी पॉसिबल ही नहीं है, इस थेरी में इस सिचुएशन में ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम डिटर्मिन ही नहीं कर सकते हैं कि कौन सा किस कमोडिटी में वो लेस डिसएडवांटेज पे है, ठीक है। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ दिस theory. In the coming videos I'll discuss about few assumptions like कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन पे अगर हम कैसे ट्रेड को सेटल करते हैं, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। दीज आर द स्लाइड्स, इन दीज स्लाइड्स आई हैव मेंशन्ड वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड, यू कैन गो थ्रू दीज स्लाइड्स। इसमें सेम वही लिखा है, सिर्फ कंप्लीट एक एक्सप्लेनेशन है। स्प्रेड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो डिफरेंस निकला था 8 का, ठीक है, जो हमने ऐड करा था 6+2 स्प्रेड, उसको बोलते हैं। ये हर एक चीज़ डिस्कस्ड है, आप इस स्लाइड्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा एंड थिंग्स विल गेट सॉर्टेड आउट। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।